Hello and welcome to Sri Ram's IAS. We hereby are discussing the Indian economy PYQs, and in this series of Indian economy PYQs, we basically discuss one PYQ a day, and these are from 2024 mains to 2023. You can find the whole one single video of 2025 mains on our channel, that is Sri Ram's IAS UPSC Prep for Indian economy. Now, one more thing is there that 2024 का जो पेपर है, that whole paper of Indian economy questions we have discussed already in this series. Now we are shifting to 2023 papers. In 2023 questions, we discussed two of them. The third question which was asked was on the farming and e-technology, the use of e-technology in farmers to help farmers in production, marketing, to help farmers in production and marketing, and how e-technology can help farmers in two things. One is how it will help them in increasing their production and how it will help them in increasing the market access, or how the e-technology should be used in these two domains. One is how it will help in increasing production. Second is how it will help in enabling more market access. So therefore, this question basically should be talked about, and the center theme of this question is e-technology. Why? Because this technology in agriculture has been a repetitive theme of UPSC. बहुत बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ई-टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर. इस साल भी हमने देखा दैट यूपीएससी ने इस बार जो क्वेश्चन पूछा था दैट वाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीआईएस, जीपीएस का यूज कैसे कर सकते हैं हम, कहाँ पे, in planning, urban planning, and that question was asked in paper 1. Plus there was one more question on the same theme in economy also, that how technology can help us in better agriculture or farmers. Now once we understand this, we understand the pretext of this question, the context of this question is well understood. Now we need to understand that how should we actually introduce this question. So introduction to this question should start from e-technology itself, because this is the center theme of the question. And once we start this, we should start this question with normal introduction. क्या होगा? That this e-technology can help us in 2-3 things. कैसे काम करेगा e-tech? By introducing digital tools, by introducing data analytics, we should simply define in the introduction that what actually e-technology means in terms of agriculture. So how do we define it? By saying that e-technology is basically the use of digital tools, blockchain technology, data analytics, data-driven policies in agriculture. That is the basic theme of what? Of using technology in agriculture. Why should we use this technology in agriculture? Because it is said that 42% of our labor force is participating in agriculture. So if we can increase their productivity, this will lead to decrease in disguised unemployment or disguised employment. So that should be the basic theme of our question, जहां से हम अपना question start करेंगे. Now, अगर हमें इतना समझ में आ गया है, तब हमें दूसरे पार्ट पे जाना होगा क्वेश्चन के. What is the second part of this question? That is body. और बॉडी के पार्ट में हमें क्या पूछा जा रहा है? दैट इस क्वेश्चन में आप एक और चीज बताओ, फार्मर्स को how will it help in production, in increasing the production. Now remember one thing, इसमें बच्चे क्या करेंगे? बच्चे यहाँ पे बहुत ही बड़ी एक गलती करते हैं इस क्वेश्चन को एड्रेस करते टाइम. स्टूडेंट्स विल डू अ मिस्टेक, दैट इज वो यहाँ पे प्रोडक्शन के नाम पे बस इतना लिखेंगे दैट प्रिसीशन फार्मिंग तो लिखेंगे, बट उसका एक्चुअल एग्जाम्पल नहीं देंगे. दे विल नॉट मेंशन स्टार्टअप्स which are working in this direction. They will not mention the government initiatives which are being taken in this direction. That is a problem.
और अगर वो प्रॉब्लम है आपके आंसर में दैट यू आर नॉट स्पेसिफिकली गिविंग द रेलेवेंट एग्जाम्पल्स, यू आर नॉट सब्सटैंशिएटिंग योर आंसर, देन आपके आंसर को एवरेज नंबर मिलेंगे एंड इवन बिलो एवरेज नंबर मिलेंगे अगर वो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा कॉपीज चेक कर रहा है तो। अगर उसके पास ज़्यादा कॉपीज है तब तो बिलो एवरेज नंबर मिलेंगे, अगर उसके पास कम कॉपीज है, ऑल्दो यूपीएससी में जब आप मेंस का आंसर लिखते हैं एवरी एग्जामिनर हैज़ एम्पल अमाउंट ऑफ कॉपीज, और तब आपको दिखेगा दैट आपका जो आंसर होगा अगर वो इस लेवल का है दैट आप पर्टिकुलरली अपने क्वेश्चन के आंसर को सब्सटैंशिएट नहीं कर रहे हैं विद रेलेवेंट एग्जाम्पल्स। ये रेलेवेंट एग्जाम्पल्स क्या होती है ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा दैट कैसे आपको ये डेटा माइनिंग करनी होती है, कैसे आपको सही एग्जाम्पल्स निकालने हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगा माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट का एक पर्टिकुलर फार्म है जो बेसिकली काम कर रहा है किसमें, प्रिसिशन फार्मिंग के। जॉन डियर जो ट्रैक्टर कंपनी है उनका एक पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सॉफ्टवेयर है जो कि ट्रैक्टर्स में यूज होता है फॉर बेटर फार्मिंग। अब ऐसी एग्जांपल्स निकालना ये आना चाहिए, इसको डेटा माइनिंग बोलते हैं एंड दैट इज व्हाट आई टीच इन माय मेंटोरशिप सेशंस। अगर आपको भी लगता है कि आपको ऐसी मेंटोरशिप की ज़रूरत है तो डू कम विजिट श्रीराम्स IAS एंड मीट द अदर मेंटोर्स एंड गेट योर सेल्फ ऑन द राइट ट्रैक टू UPSC प्रिपरेशन। नाउ बिफोर वी स्टार्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमें इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स को एड्रेस करना है। पहला इज फार्मर्स इन प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन को इंक्रीज करते टाइम ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी, मार्केट एक्सेस को इंक्रीज करते टाइम ये टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। ये दो पार्ट्स होंगे हमारे क्वेश्चन के। थर्ड पार्ट विल बी द मेजर्स विच वी हैव टेकन इन दिस डायरेक्शन, वेदर द गवर्नमेंट मेजर्स और द प्राइवेट सेक्टर मेजर्स, एंड लास्ट में वी विल राइट द कंक्लूजन। अंडरस्टूड? यहां तक क्लियर है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट प्रिसिशन फार्मिंग जब हम बोलते हैं या प्रिसिशन एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो बेसिकली मैं यहां पे बोलूंगा दैट देयर इज दिस यूज ऑफ GPS गाइडेड, हाँ, GPS guided tractors, GPS guided drones, which will help us in increasing the application of seeds at the particular field, plus they will also help us in applying fertilizers, seeds, better utilization of irrigation, ये सब चीजें हो सकती हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रिसिशन एग्रीकल्चर। और ICAR की स्टडी हमें बोलती है दैट अगर आप 20% राइज चाहते हैं, 20% इंक्रीज चाहते हैं प्रोडक्शन में, तो देयर शुड बी 10%। इफ द एग्रीकल्चर इंक्रीजेज विद प्रिसिशन फार्मिंग, यू कैन डू वन थिंग, यू कैन इंक्रीज योर एग्रीकल्चरल आउटपुट बाय 20% and this will also help us in reducing the input cost. Precision farming will help us in increasing the output by 20% and decreasing the input cost by 10%. Now this is the perfect statement जो आपको फ्रेम करना है इस एक पॉइंट के अंदर। और ऐसे ही अगर आप इतना रॉ भी लिखते हैं मेंस के आंसर में तब भी चलता है, बट आपके फैक्ट्स करेक्ट होने चाहिए। हाँ, शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करने हैं, रिमेंबर दिस। ठीक है, क्लियर? इसका एग्जाम्पल एज आई सेड माइक्रोसॉफ्ट का एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है जिसका नाम है फार्म बीट्स। ठीक है, इसके साथ साथ वी हैव वन मोर प्रोग्राम ऑफ जॉन डियर। John Deere is using this precision farming methods to implement what? To implement precision farming. उसके साथ साथ स्मार्ट इरिगेशन की बात करें तो सॉइल मॉइस्चर, डिटेक्शन के लिए हमारे पास सेंसर्स होते हैं। ये सेंसर्स काम किस तरीके से करते हैं दैट सॉइल के अंदर अगर मॉइस्चर कम हो रहा है तो दे विल स्टार्ट द इरिगेशन सिस्टम। Therefore, irrigation will be calculative. Calculative irrigation से क्या होगा? Right amount of irrigation at the right time will help plants to utilize fertilizers
better. Now this is or these are the points जो आपको लिखने हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर आपने नाम सुना होगा जैन इरिगेशन सिस्टम। जैन इरिगेशन एक बहुत ही बड़ा नाम है इन टर्म्स ऑफ ड्रिप इरिगेशन। अब ये जो जैन इरिगेशन है इन टर्म्स ऑफ ड्रिप इरिगेशन, व्हाट दे आर डूइंग बेसिकली इज दे प्रोवाइड द ड्रिप इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपको वो ड्रिपर्स, नोजल्स, पाइप्स, मोटर, ऑटोमेटेड, पूरा ऑटोमेटेड सर्कुलेटेड वाटर, जिसके ऊपर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा था, रिसर्कुलेटेड ऑटोमेटेड जो पानी होता है वो कैसे काम करता है वो पूरा सर्किट। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। आपका हर एक स्टेटमेंट अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो ना प्रिसिशन एग्रीकल्चर से, ये बस मेंशन नहीं करना है, इसके बाद इसका एग्जाम्पल भी देना है और इसका सही एग्जाम्पल देना है कि कहाँ पे ये यूज हो रहा है, ताकि कल को जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाओ आपको पता हो कि मुझे क्या करना है। आप थेरी में बात ना करो हवा हवा में, ठीक है, वैसे बात नहीं करनी है। राइट एंड पर्टिकुलर फैक्ट मेंशन करना है, देन ओनली नंबर आते हैं, ठीक है। तभी एग्जामिनर को लगता है कि भाई इसके पास नॉलेज है, ये इंसान जब कल को डिस्ट्रिक्ट में जाएगा तो वहां पे काम करेगा, इसको पता है एक्चुअल में मार्केट में चीजें क्या चल रही है। ये बस बुकिश नॉलेज नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब दीज थिंग्स शुड बी रेड अक्रॉस द न्यूज़पेपर। जैन इरिगेशन काफी बार न्यूज़पेपर में आ चुका है। ये माइक्रोसॉफ्ट का फार्म बीट, जॉन डियर का एग्जांपल्स, दीज आर पर्टिकुलरली मेंशन्ड इन दीज एडिटोरियल्स व्हेन दे टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू इज, हाँ, प्रिसिशन फार्मिंग हो गया, दूसरा स्मार्ट इरिगेशन हो गया। थर्ड वन वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड। वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, आईबीएम का एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, आईबीएम वेदर कंपनी, which provides real time inputs about और आगे आने वाला रियल टाइम फोरकास्ट, ठीक है, आगे आने वाला फोरकास्ट भी बताते हैं और अभी की इंफॉर्मेशन भी बताते हैं अबाउट व्हाट वेदर। किसान के लिए किसान सुविधा ऐप, these can be used, plus we have SkyMet which is actually a farmer helpline which will help farmers to plan sowing and harvesting of seeds. Now these examples should be quoted in the exam, ठीक है, आपके आंसर में। इसके साथ साथ डिजीज एंड पेस्ट कंट्रोल। डिजीज एंड पेस्ट कंट्रोल की बात करें तो कैसे होगा कि आपको एटलीस्ट अपने फार्म में कुछ ऐसी मशीनरी, कुछ ऐसे सेंसर्स, कुछ ऐसे कैमरास लगाने होंगे हु विल डिटेक्ट, दीज कैमरास शुड डिटेक्ट ऑल द पेस्ट्स। पर्टिकुलर क्रॉप और पर्टिकुलर प्लांट पे अगर ज़्यादा पेस्ट स्टार्ट हो रहा है तो जहाँ से ये पेस्ट इन्फेस्टेशन हो रही है वहीं पे जाके दवा लगे। हर एक प्लांट पे फजूल में कॉस्ट ना लगे, हर एक प्लांट पे स्प्रे ना करना पड़े। और जब तक वो डिजीज या जब तक वो पेस्ट पूरे क्रॉप को इन्फेक्ट कर देता है तब तक तो पता भी नहीं चलता फार्मर को। इसीलिए राइट सेंसर्स एंड राइट कैमरा बेस्ड अप्रोच, जैसे एक ऐप है हमारे पास प्लांटिफिक्स और प्लांटिक्स एक और ऐप है, ठीक है। ये ऐप क्या करती है, ये फार्मर्स को अलाउ करती है कि आप अपने फोटोज अपलोड करो। अब ये फार्मर को 2-3 चीजें एडवाइस करती है अपलोड करने के बाद, फोटो अपलोड करने के बाद, कि एक ये डिजीज कौन सी है, ये पेस्ट कौन सा है और इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी चीज यूज कर सकते हैं, कौन सा मेडिसिन, कौन सा पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं। दिस होल प्लांटिक्स ऐप इज AI बेस्ड। इसका मतलब ये है इसके पीछे उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं लग रहा है, लेबर का कॉस्ट भी नहीं लग रही है, ठीक है। सॉइल एंड क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग। सॉइल एंड क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सॉइल हेल्थ कार्ड। बट सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ साथ और क्या एग्जांपल्स लिख सकते हैं हम, जैसे हमारे पास पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग किट्स होते हैं। ये जो पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग किट्स होते हैं इनका नाम है एग्रोस्टार, फसल। ये कुछ ऐसे, हाँ, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं, ये कुछ ऐसे पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग हेल्थ
किट्स है जो फार्मर्स को हेल्प करेंगे अपनी सॉइल का हेल्थ डिटेक्ट करने में। क्लियर है यहाँ तक? मशीनरी एक्सेस, ठीक है, इसके साथ साथ लैंड मैपिंग और कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड। जैसे आपको याद होगा तो हमने अभी कुछ टाइम पहले स्वामित्व स्कीम लॉन्च की थी। इस स्वामित्व स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था? डिजिटाइजेशन एंड ये डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स क्यों होगा? ये डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इसीलिए होता है ताकि सही अमाउंट ऑफ लैंड पता चले, टोटल क्रॉप्ड एरिया पता चले और उसके बेसिस पे ही फिर डिसीजंस लिए जाए कि कैसे क्रॉप्ड एरिया को बढ़ाया जाए, कैसे इरिगेटेड एरिया को बढ़ाया जाए। ठीक है, इसीलिए यूपीएससी ने भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था, कंपेयरिंग दी प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन ऑफ चाइना एंड इंडिया। तो जिन बच्चों का मेन स्ट्रांग है उनका आराम से वो क्वेश्चन हो सकता है, प्रीलिम्स वाला भी। ठीक है, इसके साथ साथ डेटा ड्रिवन पॉलिसीज, जैसे व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस स्मार्ट एग्रीकल्चरल टूल्स। एंड नॉट ओनली दिस, एग्रीकल्चर इज बेसिकली फेसिंग अ क्राइसिस। ठीक है, जहां पे क्राइसिस है लैंड की। अगर आपने 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है और उस एनसीईआरटी में आपने ये पढ़ा होगा स्टोरी ऑफ पालमपुर। पालमपुर में सबसे बड़ी दिक्कत जो हाईलाइट की गई है वो ये है कि लैंड इज लिमिटेड। अब इस लिमिटेड लैंड को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है बेटर, तो वहां पे पालमपुर में एक सोल्यूशन निकलता है मिक्स्ड फार्मिंग का। ठीक है, और उसके साथ साथ वो लोग क्या कर रहे हैं, इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं, बार बार क्रॉप्स चेंज कर रहे हैं ना। ये सब चीजें तो हमें समझ में आ गई। इसके साथ साथ एक और चीज थी जो पालमपुर में मिस की गई थी, दैट लैंड के बदले कुछ और भी किया जा सकता है, वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग के साथ साथ माइक्रो फार्मिंग। देयर आर सम ऑफ द सुपर फूड्स जो इंडोर फार्मिंग में बनाए जाते हैं। इंडोर फार्मिंग में कैसे बनाए जाते हैं ये फूड्स? जैसे अगर आपको पता हो माइक्रोग्रीन्स, माइक्रोग्रीन्स कमरे के अंदर उगाए जाते हैं। अगर आपको पता हो दिल्ली में एक महिला है जो अपने घर में सैफरॉन उगाती है, जो अपने घर में कीड़ा जड़ी की खेती करती है। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर के अंदर एक कमरे में साइड में वर्टिकल फार्म बना रखा है, अपने ही कमरे में फार्म बना रखा है, खुद की सब्जियां खुद ही उगा रहे हैं, पालक धनिया ये सब चीजें खुद उगा रहे हैं। दीज आर द न्यू इनिशिएटिव्स विच फार्मर्स शुड टेक, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कि अपने घर के अंदर अर्बन फार्मिंग ही नहीं है, बट उसके साथ साथ बहुत सारी और चीजें कर सकते हैं। वर्टिकल फार्म से एक बहुत ही बड़ा 10 स्टोरी 12 स्टोरी बिल्डिंग को सीधा फार्म बना दिया 10 से 15 लेयर्स का। ठीक है, और ऐसी चीजें हो रही है कहां पे? जापान में। जापान में देयर इज अ फूड चेन सुपर फूड्स के नाम से, आप सर्च करके देख लेना एक बार, वो लोग कैसे काम करते हैं माइक्रोग्रीन्स के ऊपर। इलॉन मस्क का छोटा भाई, ही इज ऑल्सो डूइंग ऑन दिस थिंग ओनली, माइक्रो फार्मिंग पे ऊपर, वो भी माइक्रोग्रीन्स ही उगा रहा है, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर ऑफ फार्मिंग एंड दिस इज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, मैन काइंड। इसीलिए यूपीएससी इस पे इतना ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंस दे रहा है, इसीलिए यूपीएससी इतना ज़्यादा इस पे जो है क्या बोलते हैं इसको, कि हर साल ही इस क्वेश्चन से, इस थीम से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अंडरस्टूड यहाँ तक? नेक्स्ट इज कि एग्रीकल्चरल दिस ई टेक्नोलॉजी को मार्केटिंग में यूज़ कैसे किया जा सकता है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में सबसे पहली चीज़ है दैट इट विल प्रोवाइड फार्मर्स डायरेक्ट मार्केट एक्सेस। कैसे प्रोवाइड करेगा डायरेक्ट मार्केट एक्सेस? जैसे हमको पता है दैट ई नैम, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, ये क्या काम करता है? ये फार्मर्स को पैन इंडिया लेवल पे रियल टाइम मार्केट की स्टोरी बताता है, रियल टाइम मार्केट प्राइसेस, ताकि फार्मर्स डिसीजन ले सके कि मेरा जो ये प्रोडक्ट है ये मैं अभी यहां से दिल्ली भेजूं, इसको गुजरात भेजूं, इसको बेंगलोर भेजूं, सही टाइम पे उसको सही से एक खरीदार भी मिल जाएगा। क्योंकि यहां पे पैन इंडिया लेवल पे 1300 प्लस यहां पे हमारे पास एपीएमसीज है जिनको हमने इंटीग्रेट किया हुआ है।
ताकि रियल टाइम पे फार्मर्स को पता चले कि अभी किस मंडी में कितना भाव है। जो जिस मंडी में बेस्ट प्राइस मिल रहा है उसी मंडी में अपना माल भेजेंगे और वहाँ पे उनको सही दाम मिल जाएगा। अंडरस्टूड। एक और चीज़ हमें समझनी है, जैसे यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स है, प्राइवेट लेवल पे भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे डी हाथ। ये एक प्लेटफॉर्म है, एक पोर्टल है जहां पे फार्मर्स को प्राइस का पता चल जाता है। निंजा कार्ट, ये भी क्या करता है, ये भी फार्मर्स से ही डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कर लेता है। आईटीसी का ई चौपाल, ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो अगर आप याद रखो तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इनसे। ठीक है, ऐसी चीजें आपको एग्जाम में लिखनी है अपने आंसर में, तभी आपका आंसर अलग दिखेगा, तभी ये दिखेगा कि आपके आंसर में जान अलग से आ गई है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट और रियल टाइम मार्केट इंफॉर्मेशन ऐसे ही मिलेगा। रियल टाइम मार्केट इंफॉर्मेशन के लिए हमने भी क्या लॉन्च किया था अभी रिसेंटली, एग मार्क नेट। ये क्या प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चरल मार्केट, किसान सुविधा ऐप। ये चीजें हैं जो हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अमेज़न का एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सहेली। ठीक है, फ्लिपकार्ट का एक और इनिशिएटिव है, फ्लिपकार्ट समर्थ लिंक। जो फार्मर्स की हेल्प करते हैं ये सब लोग, और ये सब इनिशिएटिव्स फार्मर्स के लिए ही हैं। अंडरस्टूड। रियल टाइम मार्केट इंफॉर्मेशन ऐसी ही मिलती है, और उसके साथ साथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सप्लाई चेन सेफ्टी के लिए ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस कैन बी यूज्ड। ठीक है, हम यहां पे सजेशन दे सकते हैं दैट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर फार्मिंग, फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चरल मार्केट्स, टू एंश्योर एग्रीकल्चरल ट्रांसपेरेंसी, मार्केट ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है, दैट इज एग्री लेजर। हाँ, दिस इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ओनली। ठीक है, इसके साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लास्ट टाइम हाईलाइट किया था दैट अगर ई टेक्नोलॉजी यूज किया जाए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, तो वी विल सी दैट फूड वेस्ट जो है विल डिक्रीज बाय 50%। नाउ दिस इज वन मोर सच फैक्ट जो इंसान को याद रखना चाहिए, एक सीरियस एस्पिरेंट को, क्योंकि ये फैक्ट एक जगह काम नहीं आएगा, ये 10 जगह काम आएगा। ठीक है, अंडरस्टूड यहां तक। ग्लोबल मार्केट एक्सेस मिल सकता है फार्मर्स को। कैसे मिलेगा ग्लोबल मार्केट एक्सेस? बाय इंश्योरिंग दैट इंटरनेशनल ट्रेड फेस्टिवल्स, इंटरनेशनल ट्रेड हाथ्स और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस फार्मर्स को मिल जाए। ठीक है, ये सब चीजें फार्मर्स को मिल जाए। उसके साथ साथ बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स है, जैसे देयर इज अ पर्टिकुलर इनिशिएटिव अबाउट QR कोड्स एंड ई सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। एंड ये चीज़ कैसे होगी और ये चीज़ को प्रमोट कैसे करना है और इन्हीं चीज़ों को प्रमोट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है और इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे यूजुअली आपको पता है जैविक भारत का लोगो लगता है, बट वहीं पे अगर इसके ऊपर QR कोड लगे, ये QR कोड इस इंसान को डिटेल्स दे, जो भी इसको स्कैन करे उसकी डिटेल्स दे, किसके? फार्मर के डिटेल्स दे कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस फार्मर ने बनाया है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, उसके फार्म का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, फोटोज दिखा दे। दिस इज द बेस्ट अप्रोच वेयर कंज्यूमर और फार्म, दैट इज फार्म टू प्लेट, डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी और डायरेक्ट लिंकेज हो जाएगा। अगली बार से वो इंसान डायरेक्टली फार्मर से परचेज कर लेगा, उसको मार्केट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो फार्मर डायरेक्ट अपने आप को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लिंक करेगा और वहाँ से डायरेक्टली सप्लाई कर देगा। सो दीज आर द ऑप्शंस विच आर देयर अवेलेबल। लास्ट में वी नीड टू इंश्योर दैट हमने थोड़े बहुत मेंशन करने हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स।
जैसे यहाँ पे पहला इनिशिएटिव है नेशनल ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। अब नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर, नेशनल ई गवर्नेंस इन एग्रीकल्चर और निगपा, इसका एम क्या है? इट सपोर्ट्स एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। आईओटी, ड्रोन्स एंड इन सब चीज़ों को हमें इंटीग्रेट करना है कहाँ पे? एग्रीकल्चर के अंदर। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान। सेकंड, ई मार्केट और नेशनल ई मार्केट, और वी कैन से एग्रीकल्चरल मार्केट, नेशनल ई नाम। दिस इज वन सिंगल यूनिफाइड प्लेटफॉर्म जहां पे मैंने अभी बोला 1300 प्लस मंडीज को हमने इंटीग्रेट किया हुआ है। और यहां पे हमें पता क्या चलता है? प्राइस ट्रांसपेरेंसी, कि हर एक मंडी में कितना प्राइस है। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स which we should mention. For example, submission on agriculture. This submission on agriculture supports custom hiring centers. अब ये क्या है? और ये जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स है, ये क्या काम करते हैं कि एग्रीकल्चर में जो पर्टिकुलरली बड़ी मशीनरी यूज़ होती है, जैसे हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टर्स यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में, और वो बहुत महंगे आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक हार्वेस्टर आता है 50 लाख रुपए का। अब 50 लाख रुपए किसी भी फार्मर के पास नहीं है, क्योंकि 80% जो हमारे पास फार्मर्स हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है। अब इनके पास तो इतने पैसे हैं नहीं, देयरफॉर ये सारी मशीनरी एक ही जगह, एक सेंटर पे रखी जाएगी, एक दुकान पे रखी जाएगी, वहाँ से सारे फार्मर्स जो है इसको रेंट कर लेंगे, एक एक करके रेंट के बेसिस पे ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे हैप्पी सीडर, बेसिकली हैप्पी सीडर इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि स्टबल बर्निंग का एक ऑल्टरनेटिव मिल जाए। वैसे ही दीज आर द थिंग्स। इसके साथ साथ पीएम किसान, यहाँ पे हम किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंदर 6000 रुपये देते हैं। ठीक है, ताकि फार्मर्स जो है वो अपने एग्रीकल्चर में थोड़ा सा और इनपुट डालें, उनके पास थोड़े और पैसे आ जाए, और वो ये पैसे कहाँ पे लगाए? बेटर एग्रीकल्चरल इनपुट में, चाहे वो फिर अच्छी इरिगेशन करें या कुछ और करें। एग मार्क नेट, ये किस लिए है? नेशनल लेवल मार्केट है। वैसे मैं आपको बोलूं, ये जो एग मार्क है ये यूपीएससी ने 2 बार प्रीलिम्स में पूछ चुका है। ठीक है, इसीलिए प्रीलिम्स ज़रूरी है मेंस के लिए, और मेंस ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए। दोनों की तैयारी ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रीलिम्स प्लस मेंस, दोनों के क्वेश्चंस को एनालाइज करना। पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमें समझ में आएगा दैट प्रीलिम्स और मेंस और प्रीलिम्स दोनों की लिंकेज क्या है। समझ में आ गया? लास्ट में वी हैव डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन फ्रॉम 2021 टू 2025। इसका एक मेन फोकस है किसके ऊपर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन के ऊपर, ताकि हम रिमोट सेंसिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी सब यूज़ कर सके कहाँ पे? एग्रीकल्चर में, बाय 2025। So this is broad policy framework, these were initiatives and how we can use e-technology in farming and agriculture. With this we will conclude. Conclusion भी हमें एक पैराग्राफ में ही लिखना चाहिए, यूजुअली पैराग्राफ में लिखना चाहिए, और ये पैराग्राफ 3 से 4 लाइन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने भी 3 ही पॉइंट्स लिखे हैं, ताकि आप एक ही पैराग्राफ के अंदर ये तीनों चारों पॉइंट्स एक साथ एक ही लाइन में लिख लो। ठीक है, जैसे हमारा एग्रीकल्चर started with the subsistence farming, and currently we are transforming our agriculture into agri businesses, larger businesses with contract farming and whatnot. But with this we need production efficiency and we need to increase productivity. In order to increase productivity, what we should focus on is the food demand, that are we actually implying or are we actually going to satisfy the food demand which is going to raise. And this food demand will be around 500 million tons by 2050. अब इस चीज़ को अचीव करने के लिए what we need is, we not only need the entrepreneurs but we also need agripreneurs, and these agripreneurs or the national food security, these agripreneurs will help us in achieving the goals of national food security. With this we conclude today's discussion. If you have any suggestions or if you have any doubts regarding your preparation, you can comment in the comment section, and I wish you all the best. Thank you. Jai Hind.